Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਦ ਸਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਫਸਟ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, that is called intensity of magnetization। ਤਾਂ intensity of magnetization ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ I ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ it is net magnetic movement per unit volume of the sample। ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਸ ਨੂੰ M ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ V ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ I is equal to M/V। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ M ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? M ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀਆਂ n ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ I ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ B is equal to μ0 Ni। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ B0 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਲ I ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ I ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੈਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ I ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ I ਸਮਾਲ I ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। B is equal to μ0 Ni ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ B0 ਸਿੰਬਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ B0 ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿ ਸਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਕ ਆਇਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਫਿਲ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਇਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ B0 + Bm। B0 ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ Bm ਜੋ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ Bm ਹੁੰਦਾ ਜੀ μ0 I। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ B0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ Bm ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ B ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? μ0 Ni ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ μ0 I ਜੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ H ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ।
इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन उस मटीरियल की है जिसनों असीं मैगनेटाइज कर रहे हैं। मैगनेटिक इंटेंसिटी वो है जो असीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मैगनेटिक फील्ड टू मैगनेटाइज आ मटीरियल मीडियम, कि जो असीं मैगनेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी की एबिलिटी है इस मटीरियल नूं मैगनेटाइज करन दे विच, ठीक है। तो हुण ये जो फील्ड असीं अप्लाई किया है बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो इस दे विच एन ते आई है जो असीं चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्नस ते करंट। तो इस नंबर ऑफ टर्नस ते करंट नूं असीं एच कहने हैं जी, एच मैगनेटिक इंटेंसिटी। तो जे असीं एन आई नूं एच पुट कर दईए तो म्यू नॉट एच बन जाएगा। तो एक नवीं टर्म असीं डिफाइन करती मैगनेटिक इंटेंसिटी जिहड़ी कि मटीरियल नूं मैगनेटाइज कर रही है, ठीक है। तो असीं एच अप्लाई करांगे तो उहदे विच आई प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। तो जे असीं इस दे यूनिट देखिए करंट दे यूनिट हुंदे जी एम्पीयर, ये नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ है, तो इस दे यूनिट की बनणगे एम्पीयर पर मीटर। ये भी एक वैक्टर क्वांटिटी है जी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये एच दे नाल रिलेटेड है, बी दे नाल रिलेटेड है, तो उस करके जो उसकी डायरैक्शन है वही इसकी डायरैक्शन होएगी। तो इसनूं एक होर नाम दिता जाता जी, ऑल्सो कॉल्ड एम्पीयर टर्नस पर मीटर। तो इसनूं एम्पीयर टर्नस मतलब जो करंट दी टर्नस है, क्योंकि सोलेनोइड दे विच की हुंदा है कि टर्नस हुंदी है ना, तो सोलेनोइड दी टर्नस दे विचों जो करंट फ्लो कर रहा है तो उसनूं एम्पीयर टर्नस कह दिंदे आ, करंट दी जो टर्नस है पर मीटर, ठीक है। वो जिन्नियां असीं ज़्यादा अप्लाई करांगे या जिन्नियां क्लोज होणगियां तो उहदे नाल ये फील्ड जिहड़ा वो स्ट्रोंग होएगा। तो तुसीं दोनों दे विच बड़ी क्लीयर तुहानूं क्लैरिटी होनी चाहिए है, क्लीयर डिफरेंस पता होना चाहिए है। चलो एक होर टर्म डिफाइन करते हैं जिस तो बाद मैगनेटिक ससैप्टेबिलिटी। तुहानूं याद होएगा कि असीं यूनिट 1 दे विच इलैक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी की गल कीती सी, उसनूं चाई दे नाल लिखिया सी, सिंबल है चाई, CHI, ठीक है। तो इत्थे M सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैगनेटिक ससैप्टेबिलिटी है। तो मैगनेटिक ससैप्टेबिलिटी दसदी है कि इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच अ मटीरियल विल मैगनेटाइज्ड इन द अप्लाइड मैगनेटिक फील्ड, कि जो असीं मैगनेटिक फील्ड अप्लाई करता तो मटीरियल उस दे विच कितना मैगनेटाइज हो सकता है, ठीक है ना। ये मटीरियल ते भी डिपेंड करता है। तो इस करके चाई दे नाल असीं मटीरियल दी प्रॉपर्टीज़ नूं डिफाइन करांगे। तो ये असीं देखिया जी कि जो उस दे विच इंटेंसिटी डिवेलप हुंदी है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी है एच दे, कि जिन्ना असीं एच लगाने आ। तो आई इज़ इक्वल टू चाई एम इंटू एच, ठीक है। एक कॉन्सटेंट लगता जी इत्थे। तो चाई एम किस दे इक्वल हो गया जी, आई ओवर एच। तो इसनूं असीं इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन एंड मैगनेटिक इंटेंसिटी, आई ओवर एच, क्योंकि आई दे यूनिट भी एम्पीयर पर मीटर है, इस दे यूनिट भी एम्पीयर पर मीटर है। तो चाई जो है, चाई एम जो है, ये डिमेंशनलैस क्वांटिटी है, इसलिए कोई डिमेंशनस नहीं जी, ठीक है। हुण ये सारियां वैल्यूज़ फिर असीं सबस्टिट्यूट करिए जी उस इक्वेशन दे विच जिहड़ी असीं लैके चल रहे हैं कि B इज़ इक्वल टू B नॉट प्लस BM, ठीक है। B नॉट की वैल्यू असीं पुट की है म्यू नॉट NI, BM की वैल्यू म्यू नॉट I, ठीक है। तो इसनूं असीं H पुट करता जी, म्यू नॉट H हो गया। तो हुण असीं I की वैल्यू पुट करते हैं, आह वाली वैल्यू चाई M ते H। इक्वेशन नंबर 4 की बनेगी, तो लुक एट इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 दे विच जदों असीं वैल्यूज़ पुट करते हैं NI नूं असीं कहता जी H, तो बन गई म्यू नॉट H। तो I की जगह तो असीं पुट करता जी चाई M इंटू H। तो इन्हां दोनों दे विचों देखो जी म्यू नॉट भी कॉमन है तो H भी कॉमन है, तो अंदर रह गया जी 1 प्लस चाई M। तो 1 प्लस चाई M नूं तुहानूं याद होएगा जी इस तरह ही इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच कैपेसिटर वाले चैप्टर दे विच टर्म डिफाइन कीती सीगी, डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की असीं गल करते हुंदे आ, ਜਾਂ जिस नूं एप्सिलॉन आर किया सी। तो सिमिलरली 1 प्लस चाई एम इत्थे हो जाएगा म्यू आर, जिसनूं असीं कहांगे जी रैलेटिव मैगनेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। तो इसनूं म्यू आर नाम दे देंगे, तो ये बन जाएगा जी म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ठीक है। म्यू नॉट म्यू आर इज़ म्यू, सिमिलरली जिस तरह असीं उत्थे करते सीगे, ठीक है। तो उस तरीके दे नाल इत्थे भी असीं म्यू नॉट म्यू आर नूं म्यू कह रहे हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा जी B इज़ इक्वल टू म्यू एच, क्लीयर। म्यू नॉट इज़ फॉर फ्री स्पेस, म्यू इज़ फॉर मटीरियल मीडियम, कि हुण उस मटीरियल मीडियम का पूरा फॉर्मूला की बन गया B इज़ इक्वल टू
म्यू एच, तो म्यू नॉट म्यू आर कि म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। तो इत्थों असीं म्यू आर भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो रैलेटिव मैगनैटिक परमेबिलिटी है वो की चीज़ है। तो देखो जी, रैलेटिव मैगनैटिक परमेबिलिटी की चीज़ है, इट इज़ द रेशो ऑफ मैगनैटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जी म्यू किस लिखा सी म्यू नॉट म्यू आर, तो म्यू आर की हो जाएगा म्यू ओवर म्यू नॉट। तो रेशो होगी जी मैगनैटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, म्यू आर किस दे इक्वल सी 1+chi_m, जो असी लास्ट पेज ते एक्सप्रैशनस कीते सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रैशन है, इसनूं भुलना नहीं, क्योंकि जो भी असी मटीरियल मीडियम्स नूं क्लासीफाई करांगे तो असी रैलेटिव मैगनैटिक परमेबिलिटी की गल करांगे तो मैगनैटिक ससैप्टिबिलिटी की गल करांगे। तो ये फॉर्मूला असी बार बार यूज़ कराया करांगे। ठीक है, एक होर चीज़ जी, जिहड़ा म्यू आर है, क्योंकि देखो ये म्यू ओवर म्यू नॉट है। ठीक है, जे इसनूं इस तरह लिख लीए म्यू एच ओवर म्यू नॉट एच, तो म्यू एच की सीगा लास्ट असी कीता सी बी, तो म्यू नॉट एच की है बी नॉट। तो इनू असीं ऐ भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैगनैटिक फील्ड असीं अप्लाई किया है तो जो मैगनैटिक फील्ड इनसाइड द मीडियम है, मतलब जो नैट मैगनैटिक फील्ड उसके इनसाइड है। ठीक है, जो अप्लाई किया है प्लस जो मटीरियल ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। क्लीयर। तो इस ते बेस्ड, इस एक्सप्रैशन ते बेस्ड असी मैगनैटिक मटीरियल्स नूं क्लासीफाई करांगे डायामैगनैटिक, पैरामैगनैटिक ते फेरोमैगनैटिक दे विच। डायामैगनेटिज्म, पैरामैगनेटिज्म ते फेरोमैगनेटिज्म है कि मैगनैटिक मटीरियल्स नूं असी क्लासीफाई करते हैं मेनली इन 3 कैटेगरीज: डायामैगनैटिक मटीरियल्स, पैरामैगनैटिक मटीरियल्स एंड फेरोमैगनैटिक मटीरियल्स। तो डायामैगनैटिक मटीरियल्स की है जी, तो डायामैगनैटिक मटीरियल्स वो है जी जिहड़े कि मैगनैटिक फील्ड द्वारा वीकली रिपैल किए जाते हैं, कि दीज मटीरियल्स आर वीकली रिपैल्ड बाय मैगनैटिक फील्ड। ठीक है, तो जे असीं एक बार नूं, बार मैगनेट नहीं कह रहा मैं, नोट, इफ अ बार ऑफ डायामैगनैटिक सबसटेंस इज प्लेसड इन एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड, तो ये एक डायामैगनैटिक सबसटेंस है जो शो की गई है बार। जे असीं इसनूं एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड जो कि इस तरह यूनीफॉर्म सी पहला कि पैरलल लाइनस सीगियां, ठीक है, तो उहदे विच असीं एक बार प्लेस करती जी डायामैगनैटिक मटीरियल दी, तो वो मैगनैटिक फील्ड किवें चेंज हो जाएगा जी, तो वो मैगनैटिक फील्ड इस तरह चेंज हो जाएगा कि लाइनस बैंड कर जाएंगियां जी, बार तो अवे पास करने की कोशिश करनगियां जिन्नियां वो पास कर रही हैं। ठीक है जी, तो बैंड करने की कोशिश करनगियां। जे सेंटर च प्लेस करते हैं तो उपर वाली लाइनस उपरों बैंड होकर लंघ जाएंगियां, नीचे वाली लाइनस नीचों बैंड हो जाएंगियां। ठीक है, तो ये लाइनस तो अवे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब लाइनस इस तो अवे होने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो इत्थे भी वर्ड यूज़ किया जाता है कई बार कि इट ट्राइज टू स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रोंगर रीजनस ऑफ मैगनैटिक फील्ड। ठीक है, कि आपदे आप नूं वीक रीजनस ऑफ मैगनैटिक फील्ड दे विच सैट कर लैंदा है, तो जिन्ना हो सके जी मैगनैटिक फील्ड नूं की करता है, एक्सपैल करता है आपदे विचों। ठीक है, इस दी कुछ एग्जाम्पल्स याद रखनी है, जिस तरह बिस्मथ है, कॉपर है, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड, तो ये सारे डायामैगनैटिक मटीरियल्स दी एग्जाम्पल्स है, ये तुसीं याद रखनी है। कई बार डायरैक्ट क्वेश्चन पूछ लेंदे जी डिफाइन डायामैगनैटिक सबसटेंसेस एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स, तो बड़ा ईजी क्वेश्चन हो जाता है जी। हुण डायामैगनैटिक मटीरियल दे विच देखो जी की हुंदा है कि क्यों वो इस तरह बिहेव करता है, कि डायामैगनैटिक सबसटेंस किहड़े हुंदे है जी जिन्हां दे एटम्स जो है जां मॉलीक्यूल है उन्हां दी मैगनैटिक मूवमेंट जो है, रिजल्टेंट मैगनैटिक मूवमेंट वो 0 हुंदी है। तो मैगनैटिक मूवमेंट असीं दस्सिया सी क्यों डिवेलप होंदी है कि उन्होंने ऑर्बिटल मोशन करके डिवेलप हो रही होंदी है। ठीक है, जो उन्होंने विच इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो मोस्टली इन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड होंदे हैं। ठीक, नैट मैगनैटिक मूवमेंट है दोनों इलैक्ट्रॉन्स की वो की हो जाती है 0 हो जाती है। एक सुपर कंडक्टर्स बारे तुसीं सुनिया होएगा जी। सुपर कंडक्टर्स होंदे है कि जो असीं कंडक्टर दे विच टैंपरेचर लो करते जाने ना, तो एक टैंपरेचर आता है बहुत लो टैंपरेचर कि असीं 0 कैल्विन के नज़दीक चले जाते हैं, तो मटीरियल का रजिस्टेंस मटीरियल का रजिस्टेंस 0 हो जाता है। तो जो मटीरियल का रजिस्टेंस 0 हो जाता उसनूं असीं सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो ये देखा गया जी, जो सुपर कंडक्टर्स है वो परफेक्टली डायामैगनैटिक है।
मतलब आपदे विचों सारियां लाइनस ही एक्सपैल कर देंगे जिवें असीं इत्थे शो कर रहे हैं ना कि एक लाइन तो पास कर रही है ना इहदे विचों ते जे सुपर कंडक्टर हुंदा तो इन्हें भी नहीं पास करना सी ठीक है ना। तो सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्टली डायामैग्नेटिक। परफेक्टली डायामैग्नेटिक का मतलब कि उनके अंदर जो बी है वो जीरो हो जाएगा। असी बी नोट अप्लाई किया है बट उनके अंदर बी जीरो हो जाएगा ठीक है। जो वो जीरो हो जाएगा तो फिर की हो जाएगा, फिर म्यू आर भी जीरो हो जाएगा। जो म्यू आर जीरो है तो चाई एम की वैल्यू -1 आ जाएगी क्योंकि रिलेशन है ना म्यू आर तो चाई एम दे कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम इज इक्वल टू म्यू आर -1 तो चाई एम की वैल्यू हो जाएगी -1। तो सुपर कंडक्टर्स जोड़े परफेक्टली डायमैग्नेटिक है, इन्हों का म्यू आर जीरो हो जाएगा तो चाई एम की वैल्यू -1 हो जाएगी ठीक है जी। तो रैलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटीरियल, हुण असीं किसी भी डायामैग्नेटिक मटीरियल की गल करिए तो उनकी जो रैलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो स्लाइटली लैस दैन 1 होएगी। क्यों लैस दैन 1 होएगी? क्योंकि इस दसिया जी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नॉट इज इक्वल टू बी ओवर बी नॉट। तो इन द इनसाइड जो बी है दैट इज़ लैस दैन बी नॉट, उपरली वैल्यू लैस है नीचे वाली ज़्यादा है तो म्यू आर जो हमेशा लैस दैन 1 होएगा ठीक है। तो फिर मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो ससैप्टेबिलिटी का फॉर्मूला असीं फाइंड कर लैंदे आ क्योंकि म्यू आर हुंदा जी 1 प्लस चाई एम तो चाई एम हो जाएगा म्यू आर -1। हुण म्यू आर जो है ये 1 तो लैस है ठीक है, पॉजिटिव है बट 1 तो लैस है, उन्हें 1 सबट्रैक्ट करांगे तो आंसर नैगेटिव आएगा। तो इन्हां दी जो ससैप्टेबिलिटी है वो नैगेटिव होंदी है ठीक है। तो जे सुपर कंडक्टर है तो फिर -1 होंदी है। इहदा मतलब जो सुपर कंडक्टर है उनके लिए इसकी वैल्यू -1 है, तो अदरवाइज ये 0 तो लैके -1 के विच लाई करेगी। हुण असीं गल करते हैं जी देखो पैरामैग्नेटिक सबसटांसिस की। तो पैरामैग्नेटिक सबसटांस वो होंदे है जी विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड वैन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कि ये मैग्नेटाइज होंदे है ठीक है ना, मतलब स्ट्रोंगर रीजनस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाल अट्रैक्ट होंदे है, वीकली अट्रैक्ट होंदे हैं, वीकली मैग्नेटाइज होंदे हैं ठीक है। एग्जाम्पल्स की है सोडियम, एलुमीनीयम, कैल्शियम। एक एग्जाम्पल दी गई है ऑक्सीजन, मतलब STP ते ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक है ठीक है। जे उस तरीके दे नाल ही असीं यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे विच एक बार नूं प्लेस किया है तो लाइनस बैंड हो जांदियां जिस दे अंदरों पास करती हैं ठीक है, अंदर वाल नूं बैंड हो जांदियां तो ये मैग्नेटिक फील्ड नूं आपदे अंदरों पास होना अलाउ करता है जिवें मैग्नेटिक फील्ड लाइनस नूं अट्रैक्ट कर रहा होवे ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, बस यही पैरामैग्नेटिक ते फेरोमैग्नेटिक दे विच डिफरेंस है जो असीं नैक्सट करना है। उहदे विच लाइनस बिल्कुल अंदर वाल कॉन्सनट्रेट हो जाणगीआं ठीक है। फिर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू कितनी होएगी? क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू ओवर म्यू नॉट इज इक्वल टू बी ओवर बी नॉट, तो क्योंकि बी ग्रेटर है होने दे बी नॉट नालों तो दिस रिलेशन इज ग्रेटर दैन 1 ठीक है। तो म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर दैन 1। ये वैल्यूज़ याद रखनी है जी तुसीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक सबसटांस इज स्लाइटली ग्रेटर दैन 1। तो फिर मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी भी असीं मैथेमैटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ससैप्टेबिलिटी होंदी है जी म्यू आर -1, ये ग्रेटर दैन 1 है। हुण ग्रेटर दैन 1 मतलब 2 है 3 है 4 है, उनके विचों जो 1 सबट्रैक्ट करांगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना, समझ लगी गल। तो फिर चाई एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। डायामैग्नेटिकली नैगेटिव सी, इनके लिए पॉजिटिव है बट स्मॉल वैल्यूज़ है ठीक है, क्योंकि ये स्लाइटली मैग्नेटाइज हो रहा है, वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है। हुण पैरामैग्नेटिज्म का कारण की है? पैरामैग्नेटिज्म का कारण है कि जो इंडिविजुअल एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उन्हां दी अपनी परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होंदी है ठीक है। दे पोजैस परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ देयर ओन। पर की हुंदा है कि जो थर्मल मोशन होंदा है जी तो उन्हां दियां जिहड़ियां वो डाइपोल मूवमेंट्स है वो रैंडम होंदी है, तो उनके करके जो नैट मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो हो जाती है। तुहानूं इत्थे हुण पोलर ते नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक्स याद आ रहे होणगे कि जो असीं नॉन पोलर की गल करते सी तो असीं कहते सी कि उनके एटम्स दे विच परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, तो जो असीं पोलर की गल करते सी असीं कहते सी उनके कोले इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है बट स्पैसीमन की डाइपोल मूवमेंट जीरो है।
तो इत्थे भी कुछ इहो जिहा केस ही है कि इन्हां कोले एटम्स कोले मॉलिक्यूल्स कोले मैगनैटिक डाइपोल मूवमेंट तो है बट नैट स्पैसीमन दी जीरो है। ठीक है, तो इन्हां दी जो मैगनेटाइजेशन है जो असी ससैप्टिबिलिटी के टर्म्स एक्सप्रैस करते हैं वो एब्सोल्यूट टैंपरेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदी है, मतलब टैंपरेचर इन कैलविन दे। तो चाई एम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। जो असी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने हैं तो नाल एक कॉन्सटेंट लगता है जी सी। ठीक है, तो इसनों असी क्यूरीज कॉन्सटेंट कहने हैं क्योंकि क्यूरी ने इस लॉ में डिफाइन किया सी। तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज क्यूरी लॉ। ठीक है, इनू क्यूरी लॉ कहा जाता है जी कि जो पैरामैगनैटिक मटीरियल है उसकी ससैप्टिबिलिटी टैंपरेचर के नाल इनवर्सली वेरी करती है। हुण असीं गल करते हैं जी फैरोमैगनैटिक मटीरियल्स की। तो फैरोमैगनैटिक मटीरियल्स वही इफैक्ट्स शो करते हैं जो पैरामैगनैटिक मटीरियल्स करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफैक्ट्स शो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैगनेटाइज हो जाते हैं। तो फैरोमैगनैटिक सबसटेंसेस आर दोज विच गैट्स स्ट्रोंगली मैगनेटाइज्ड। बस इन्ना ही फर्क है जी पैरामैगनैटिक ते फैरोमैगनैटिक दे विच कि इन्हां दी मैगनेटिज्म दे विच कि दीज मटीरियल्स आर स्ट्रोंगली मैगनेटाइज्ड इन द एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड। एग्जाम्पल्स आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मटीरियल्स है। डायग्राम देख के तुहानूं समझ लग गई होएगी कि ये पैरल लाइन सीगियां ते देखो किन्नियां अंदर वाल कॉन्सनट्रेट हो गई। ठीक है, इस चीज़ को असीं पहलां भी यूज़ किया सी, तुहानूं याद होएगा तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दे विच असीं दस्सिया सी कि असीं सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं तो कोर भी लाइनस नूं इस तरीके नाल अंदर वाल बैंड करवा लैंदी सी। यही इफैक्ट सीगा उत्थे। ठीक है ना, तो असीं दस्सिया सी कि मैगनैटिक फील्ड रेडियल हो जाता है तो रेडियल मैगनैटिक फील्ड करके गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इनक्रीज़ हो जाती है, उनके उपर मैक्सिमम टॉर्क लगता है। ठीक है, तो ये सारिया गल्लां असीं कर चुके हैं जी। हुण तुहानूं वो गल होर ज़्यादा वधिया ढंग नाल समझ आएगी जे तुसीं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नूं दोबारा स्टडी करोगे। तो रैलेटिव मैगनैटिक परमेबिलिटी फिर मच ग्रेटर दैन 1 हो जाएगी क्योंकि B/B0 है तो B की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी जी B0 नालों, क्योंकि अंदर मैगनैटिक फील्ड बहुत इनक्रीज़ हो गया। तो μr इज़ मच ग्रेटर दैन 1। तो मैगनैटिक ससैप्टिबिलिटी इज़ ऑल्सो वैरी लार्ज। ठीक है ना, क्योंकि 1 ही सबट्रैक्ट करना है ना μr दे विचों। चाहे m किस दे इक्वल हुंदा है μr -1। तो जे इनकी वैल्यू 1000 तक है विचों 1 सबट्रैक्ट किया तो आलमोस्ट चाहे m की वैल्यू सेम होएगी। समझ लगी गल। तो ये चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट है जी, μr दी वैल्यूज़, चाई दी वैल्यूज़, यही गल्लां समझने वालियां इत्थे। ठीक है, असीं इन्हां तो ही एक्चुअली मटीरियल्स नूं मैथेमैटिकली देखते हैं उन्हां दी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कि वो किस तरह की मटीरियल्स है। हुण इहदे विच ये चीज़ क्यों हुंदी है जी, इहदे विच हुंदा है कि जो इंडिविजुअल एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है फैरोमैगनैटिक सबसटेंस दे, उन्हां कोल डाइपोल मूवमेंट हैगी है पैरामैगनैटिक दे वांगू, बट वो की करते हैं जी एक दूजे नाल इंटरैक्ट करते हैं। इस तरीके नाल इंटरैक्ट करते हैं कि वो अपने ग्रुप बना लेंगे हैं जी। ठीक है, जिसनों डोमेन्स कहा जाता है। तो वो की करते हैं जी इक्को डायरैक्शन दे विच अलाइन करते हैं। तो जो वो इक्को डायरैक्शन दे विच अलाइन करते हैं तो उन्हों का मैगनैटिक फील्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। हुण डोमेन थ्योरी की है ये अपने लैवल ते इत्थे समझना बहुत डिफिकल्ट है जी। ठीक है, तो डोमेन की है जी ग्रुप ऑफ एटम्स है। ठीक है ना, तो बहुत सारे एटम्स जो कंबाइन करके इक्को साइड वाल अलाइन करते हैं। ठीक है, इसनूं डोमेन थ्योरी कहा जाता है। तो फैरोमैगनेटिज्म इसे करके ही है, डोमेन थ्योरी करके ही है कि एक डोमेन दे विच जिन्ने एटम्स है वो सारे इक्को पासे वाल अलाइन करते हैं। ठीक है, जो असीं उसनूं एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड दे विच प्लेस करते हैं तो सारियां डोमेन्स इक्को पासे वाल अलाइन करन लग पैंदियां। तो दिस इज़ फैरोमैगनेटिज्म कि वट आर पैरामैगनैटिक मटीरियल्स, डायमैगनैटिक मटीरियल्स एंड फैरोमैगनैटिक मटीरियल्स। बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी कि वट आर फैरोमैगनैटिक मटीरियल्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट पूछना तो ये पूछ लेगा जी क्वेश्चन हो कि वट आर द वैल्यूज़ ऑफ मैगनैटिक परमेबिलिटीज़ एंड मैगनैटिक ससैप्टिबिलिटी ऑफ फैरोमैगनैटिक मटीरियल। तो असीं दस देंगे जी μr इज़ मच ग्रेटर दैन 1 तो चाई m इज़ मच ग्रेटर दैन 1। ठीक है जी, या क्वेश्चन है पूछ लेंगे जी गिव 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैरोमैगनैटिक मटीरियल्स और पैरामैगनैटिक, डायमैगनैटिक। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, यही प्रॉपर्टीज़ है कि रिलेटिव मैगनैटिक परमेबिलिटी इज़ वेरी लार्ज,
मैग्नेटिक ससैप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस इज़ वेरी लार्ज। तो ये क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक लिए भी पूछ सकता है, डायमैग्नेटिक लिए भी, तो फेरोमैग्नेटिक लिए भी। ठीक है जी। तो मोस्टली इस पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पहला ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ जी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी या ससैप्टिबिलिटी, वो ज़्यादा इन्हों समझने वास्ते है। ठीक है जी। मैग्नेटिक ससैप्टिबिलिटी पूछी जा सकती है जी, वट इज़ मैग्नेटिक ससैप्टिबिलिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के विचों पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि तुहानूं ये टॉपिक जिहड़ा है समझ लग गया होएगा। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।